A very good morning in Jai Hind students. Continuing with chapter number 2, that is Principles of Management. What we have studied in the last lecture was about the principles of management. What are the principles? A principle is a broad and general guideline for decision making and action. There were number of management thinkers, like I have already told you, Henry Fayol, F.W. Taylor and James D. Mooney. So they all worked in an organization, and they with the experience they realized that certain things needs to be followed. So then arises the principles, which is actually a broad and general guideline for decision making and action for the managers. All right. So today we will be starting with the nature of principles of management. Today we will study the nature of principles of management. The very first point is universal application. Dear students, I have already told you about the universality of the applications. As the principles are applicable in all kind of organizations. The principles of management are applicable in all kind of organizations, right? When we are talking about the universal applicability, so the principle of management are universal in nature and they are applicable to all kind of organizations and situations, right? For example, हम बात करते हैं, this is the principle, that is unity of direction. बेटा ये आप सब पूरा आगे अच्छे से प्रिंसिपल्स एक एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, बट जस्ट फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इसमें होता क्या है, दैट इज़ वन यूनिट वन प्लान, वन यूनिट एंड वन प्लान, जिसमें पूरी की पूरी एक टीम होती है और उन सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है. दे ऑल वर्क ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव हियर, राइट? In other words, you can say that all the activities of a work or unit should be directed towards the common objective, and this will lead to better coordination. If all are working towards a common purpose, so this will ultimately leads to better coordination and helps in effective management of the enterprise. Let's suppose ये principle किसी organization में follow up नहीं होता है, so what could be the result? इट्स लाइक डुप्लीकेशन हो सकता है एफर्ट्स का, सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग काम करें तो, राइट? रिसोर्सेज का वेस्टेज हो सकता है. ओके, एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो बी इफेक्टिव एडवर्सली बिकॉज लैक ऑफ हार्मनी ऑफ एफर्ट्स ऑफ वेरियस इंडिविजुअल. सभी इंडिविजुअल्स दे आर मोस्ट केपेबल, बट एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन डूइंग द सेम वर्क, एंड इट शुड नॉट बी लाइक दिस, right? So this principle have made just because it will lead to better coordination, right? And all the activities of a work or a unit should be directed towards a common objective. यहाँ पर everybody is aware what a person is supposed to do, right? Okay, next comes the division of labor. बेटा ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क नंबर ऑफ टाइम्स. एज व्हाट वी डू इन डिवीजन ऑफ वर्क, यहाँ पर हम काम को डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉलर टास्क और फिर उस काम को असाइन करते हैं टू द डिफरेंट इंडिविजुअल हु आर स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर टास्क, right? That is called division of work. So the principle of division of work has found application in all kind of organization in order to achieve specialization. How come specialization? It's because when you are dividing the work and assigning the work to different individual who are specialized in doing that particular task, so that means here ultimately we are achieving the benefits of specialization. हम काम को बांट देते हैं और लोगों में डिवाइड करते हैं तो लोग ज़्यादा अच्छे से स्पेशलाइज्ड वे में उस काम को करके दिखाते हैं हमें, राइट? However, the extent of division of work may vary from situation to situation. हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतना सारा काम ना हो सकता है वर्कर्स बहुत ज़्यादा ना हो, राइट? बट
the applications, the principles are applicable everywhere in all the organizations, right? Okay, let's come to the second point. What is that? General guidelines. See, I have already told you a principle is a broad and general guideline for decision making and action taking. ये मैनेजर के लिए प्रिंसिपल्स, इफ प्रिंसिपल्स आर फॉलोइंग इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इट वुड बी ईजी फॉर द मैनेजर टू टेक डिसीजंस एंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनीबडी, राइट? बिकॉज मैनेजर को पता होता है दीज आर दी सर्टेन प्रिंसिपल्स विच वी नीड टू फॉलो. उन प्रिंसिपल्स के साथ हमें काम करना है. उससे रिलेटेड मैनेजर कैन टेक डिसीजन एंड मैनेजर कैन टेक एक्शन इफ एनीबडी इज नॉट फॉलोइंग दोज पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स, राइट? Okay, so what is there in general guidelines? It is like management principles have been involved by management thinkers. Who are those management thinkers? Henry Fayol, F.W. Taylor, James D. Mune, right? और कैसे? आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस एंड एनालिसिस. इन सभी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, वहाँ रह के ये सीखा है, एक्सपेरिमेंट किया है, ऑब्जर्व किया है अबाउट द वेरियस प्रॉब्लम अकर इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, दैट्स वाई दे हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ जनरल स्टेटमेंट, जनरल गाइडलाइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी स्टेटेड एज एग्जैक्ट. As I have told you that management is not an perfect science, it is an inexact science. ओके, आप इसे फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स की तरह अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर हम सिचुएशन बाउंड हैं. हमें नहीं पता किस इंडिविजुअल, दोज हु आर वर्किंग विद अस, वी डोंट नो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, राइट? So the obvious reason is that management principle deal with human beings. So no manager can ever be sure about the behavior of human being जो कि different background से आते हैं, those who have different perception and different needs. Okay? Is the point is clear to everybody? Here I am telling you that the management thinkers, out of their experience and analysis, they have realized, they have expressed the principles in form of general statement, but we are dealing with human beings, so we and no manager can ever be sure about the behavior of human being. Though these are the general guidelines, the principles are in the form of general guidelines. Okay, now come to this third point. What is the third point? Developed by practice and experimentation. Abhi just I have told you that the management thinkers, who are the management thinkers? F.W. Taylor, Henry Fayol, इन सब ने अपने experiences से, अपने observation से analyze किया. What they analyzed? They have developed it, the principles by practice and experimentation, right? For example, हम बात करते हैं Henry Fayol की. So Henry Fayol ने principles दिए हैं, like principles of general management he has given. Principles of general management. Okay. Look here. Principles of general management is given by Henry Fayol, and principles of scientific management is given by F.W. Taylor. अब दोनों का एक स्पेसिफिक पर्पस है, इन दोनों का एक स्पेसिफिक पर्पस है. अगर हम बात करते हैं हेनरी फेयोल की, तो हेनरी फेयोल सजेस्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, एंड टेलर सजेस्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. व्हाट आर दीज? टेलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर एंड रिड्यूस देयर फटीग. ये देखा गया है, जब हमारे साथ वर्कर्स काम करते हैं, हमारे साथ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए. वो कैसे सोचना चाहिए? बिकॉज एक तो द वेरी फर्स्ट थिंग, वी नीड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस देयर फटीग, राइट? उसके लिए हम क्या करते हैं? उनको टी ब्रेक प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? लंच ब्रेक होता है उनका, उसका टाइमिंग हमें देखना होता है, राइट? सो इन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया था अबाउट मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी इससे पहले वाले लेक्चर में. अगर हम बात करते हैं टाइम स्टडी की, तो इसमें क्या कर सकते हैं? हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड टाइम जो किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने में काम आता है,
ठीक है, टारगेट्स को हम सेट करते हैं वर्कर्स के कि योर टारगेट इज़ टू मैन्युफैक्चर 500 फैंस पर डे. ठीक है, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब. कितने वर्कर्स, ऐसा नहीं है बर्डन डाल दें कि हमें 500 फैंस का हमने टारगेट दे दिया है और केवल 10 लोगों को ये टास्क दिया है कि यू आर सपोज टू मैन्युफैक्चर दिस 500 फैंस पर डे. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. वी आर FW टेलर ने ये प्रिंसिपल क्रिएट किया है, दैट इज़ ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज़ टाइम स्टडी, जिसमें लेबर के बारे में सोचा जाता है, टाइम के बारे में, उनके मोशंस के बारे में, राइट. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन स्टडी, तो ये ऑब्जर्व किया किसी रिसर्चर ने जैसे कंपनी में काम करके कि अगर हम मोशन रिलीज में थोड़ा चेंज करें, जैसे एक ब्रिक लेयर की बात करते हैं, द पर्सन हु बिल्ट वॉल हाउसेज, हाँ, तो वो क्या करता है, ब्रिक लेयर्स लगाता है, तो उसको 18 से रिड्यूस करके 5 कर दिया लेट्स सपोज, तो वो बहुत एफिशिएंसी से काम करेगा, बहुत एफिशिएंसी से काम करेगा, क्योंकि उसके मोशन से, जितनी रफ्तार से वो काम कर रहा है, उससे उसे फटीक हो सकता है, जिससे एफिशिएंसी नहीं आएगी. दिस वी नीड टू सी, राइट. सो दिस वाज अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसे किसने रिकॉग्नाइज किया, थ्रू द ऑब्जर्वेशन, थ्रू द एनालाइज बाय FW टेलर. अगर हम बात करते हैं हेनरी फेयोल की, और हेनरी फेयोल गिव्स, ये सारे एप्लीकेशन जो अभी आपने पढ़े हैं ना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क, काइंड ऑफ, ये किस लिए बनाए गए, ये प्रिंसिपल्स क्यों क्रिएट किए गए, जस्ट टू क्रिएट अ कंड्यूसिव हेल्पफुल एनवायरनमेंट फॉर द पीपल एट वर्क. हम काम को डिवाइड कर देंगे तो वो सबके ऊपर भारी नहीं पड़ेगा. काम, वर्क का प्रॉपर डिवीजन होगा इनटू स्मॉल यूनिट्स, और उस काम को डिफरेंट लोगों को जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उन सब में बांटा जाएगा, तो किसी एक पर बर्डन नहीं होगा, राइट. सो दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हियर. कंड्यूसिव मीन्स हेल्पफुल एनवायरनमेंट फॉर द पीपल एट वर्क, जिसके 2 बड़े एग्जाम्पल्स आपके सामने, लाइक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, राइट. होप दिस पॉइंट इज क्लियर, that it is the principles are developed by practice and experimentation, and the management thinkers, that is Henry Fayol and FW Taylor, he has developed the principles of general management. ये जो आप सब पढ़ रहे हो, ये आगे पढ़ोगे आप सेपरेटली, लाइक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसमें 1 यूनिट 1 प्लान होना चाहिए ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. डिवीजन ऑफ वर्क, काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है. FW टेलर के प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, लाइक टाइम स्टडी, मोशन स्टडी. हमें ये भी देखना है कि हमारे साथ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर टाइम मिले, उनके ऊपर ओवर बर्डन ना हो, काइंड ऑफ, राइट. नाउ कम्स द 4th पॉइंट, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी. हाउ कम फ्लेक्सिबिलिटी? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, राइट. सी प्रिंसिपल्स कैन टेक प्लेस एज पर नीड ऑफ द सिचुएशन फेस्ड. बार बार आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट बेटा, कि हम यहाँ पर सिचुएशन बाउंड होते हैं. हमें नहीं पता जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी नीड क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका परसेप्शन क्या है, राइट. और एक मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू सी टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर एज पर देयर नीड, एज पर देयर परसेप्शन, ठीक है. हम पूरे एक्सटेंट से तो वो नहीं कर सकते, बट येस वी कैन ट्राई अ लेवल बेस्ट, राइट. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी, सो हियर दे मस्ट बी एक्सेप्टेड एज फ्लेक्सिबल. प्रिंसिपल मस्ट बी एक्सेप्टेड एज फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक गाइडलाइंस, नॉट एज रिजिड. फिक्स्ड नहीं होने चाहिए ये. फिक्स्ड क्यों नहीं होने चाहिए, रिजिड क्यों नहीं होने चाहिए? इट्स बिकॉज हियर वी आर सिचुएशन बाउंड, ओके. सो the application of management principle depend upon specific situation being faced by manager. मैनेजर किस टाइम पर कैसी सिचुएशन फेस कर रहा है, किन लोगों के साथ डील कर रहा है, इट्स टोटली डिपेंड, राइट. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें मे नॉट बी एप्लीकेबल इन स्मॉल फर्म टू द सेम एक्सटेंट इन लार्ज फर्म. ऐसा क्यों? वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल हियर ऑफ division of labor, right. So what is there in division of labor? What we used to do here in division of labor?
डिवीजन ऑफ वर्क तो हमने पढ़ा है यहाँ पर. डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, हम काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर, सो इट मे नॉट बी एप्लीकेबल इन स्मॉल फर्म्स. इट्स बिकॉज वाई इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन स्मॉल फर्म्स, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी लेबर होती ही नहीं है कि उन्हें डिवाइड किया जाए. ठीक है, टू दी सेम एक्सटेंट एज इन लार्ज फर्म्स. बट लार्ज फर्म्स में हमें लेबर को डिवाइड करना होता है, और उन्हें बताना होता है दैट यू आर सपोज टू डू दिस वर्क, यू आर सपोज टू डू दिस वर्क, यू आर सपोज टू डू दिस वर्क. ठीक है, बट इन स्मॉल फर्म इट माइट नॉट नेसेसरी. Right? So what manager do? Manager the principles can be modified by the manager to meet the need of the situation. Situation क्या है actually organization में या किसी company में. Okay. Now comes the fifth point, and that is influence human behavior. अभी we just read this कि manager is situation bound. उसको नहीं पता उसके साथ काम करने वाले लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, उनकी behavior क्या है, उनका perception क्या है. So manager need to influence the human behavior, right? They guide them how to respond under different situation. उन्हें guide करना कि different situation में किस तरह से behave करना है. ओके, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, जहाँ पर हम काम को बहुत सारे टास्क में, स्मॉल टास्क में बांट देते हैं, राइट? या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हम 1 यूनिट 1 प्लान बनाते हैं ताकि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, एफर्ट्स वेस्ट ना हो. ठीक है, ये सब करके मैनेजर्स को हेल्प मिलती है टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़. सी, अगर ये प्रिंसिपल्स ना हो तो कोई भी कैसे भी काम करेगा किसी कंपनी में. ठीक है, बट इफ़ वी आर फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल कि काम का डिवीजन होगा, 1 यूनिट 1 प्लान होगा, तो यहाँ पर मैनेजर पूछ सकता है कि भाई मैंने आपको ये काम दिया था, आप इस कॉमन पर्पस के साथ काम कर रहे थे, क्यों ये अचीव नहीं हुआ. ठीक है, मतलब अल्टीमेटली मैनेजर कैन टेक एक्शन. बट ये प्रिंसिपल्स ही फॉलो नहीं होंगे तो मैनेजर भी कहाँ से एक्शन लेगा, राइट? ओके, इज दैट क्लियर? So, because of complex nature of human behavior, management principles might have limited applications. but यहाँ पर मैनेजर को एफर्ट करना होता है, मैनेजर को अपनी टीम को गाइड करना होता है, मोटिवेट करना होता है, सुपरवाइज करना होता है, और अल्टीमेटली उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना होता है, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेंट फॉर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर. क्यों मैनेजर क्यों इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर को, क्यों अपने साथ काम करने वालों को मोटिवेट करता है, गाइड करता है? क्योंकि उन्हें उनसे काम लेना है, गेटिंग हायर परफॉर्मेंस फ्रॉम देम. और अगर हायर परफॉर्मेंस आएगी तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, राइट? ओके, नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, दैट इज 6th one, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. Cause and effect relationship. Beta, what is in this point? See, there is a cause and effect relationship in some management principle. Cause और effect relationship होता है कैसे? The effect of certain decisions based on principles can be predicted on the basis of action. क्या एक्शन आ रहा है? जैसे अगर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की, राइट? डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है, हम यहाँ पर लेबर को डिवाइड कर देते हैं और उन्हें बता देते हैं भाई आपको ये काम करना है और आपको ये काम करना है. यू आर सपोज टू डू दिस वर्क एंड दिस टीम इज सपोज टू डू दिस वर्क. ठीक है, हमने लेबर का डिवीजन किया है यहाँ पर, और उससे क्या हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी. स्पेशलाइजेशन कैसे? हमने लेबर को बांट दिया है और बोल दिया है कि भाई आपको ये काम करना है, जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है, जिसमें काम करने का तरीका अच्छा है, हमने उसको वो काम दिया. तो जब हमने लेबर को वो काम दिया तो वो अल्टीमेटली स्पेशलाइजेशन अपने आप निकल कर आएगा. ठीक है, हम किसी को ऐसे बंदे को काम करने के लिए दे दें जिसको पार्ट्स ही लगाने नहीं आते हैं फ़ैन के, तो वो सोचेगा यार मुझे ये काम क्या दे दिया. उसे अकाउंट्स का काम दे दें तो शायद वो उसका उसमें ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट हो. ठीक है, तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, जो लेबर हमारे पास है, जो जितना अच्छा काम जिस चीज़ में कर सकती है, हम उसको उस चीज़ का वर्क अलॉट करेंगे, तो अल्टीमेटली स्पेशलाइजेशन आ जाएगा. स्पेशलाइजेशन के आते ही एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो if we are talking about this point, so here division of labor is the cause, division of labor is the cause, and efficiency is its effect. efficiency इसका effect है.
हमने जो प्रिंसिपल फॉलो किया है वो किया है डिवीजन ऑफ लेबर, और इससे क्या निकल कर आया, एफिशिएंसी, क्योंकि हमने स्पेशलाइज्ड लोगों को ही वो काम करने के लिए दिया है. स्पेशलाइज्ड पीपल को वी आर डूइंग द वर्क, वी आर गिविंग द वर्क, वी आर अलॉटिंग द वर्क, तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी विल इंक्रीज्ड. ओके, now come to the next point, which is the last one. That is contingent upon situation. Contingent means depend upon situation. How come dependent upon situation? See, management principles are relative and they are not absolute laws. Their applications is dependent on contingent upon the prevailing conditions. क्या चल कैसी कंडीशन है कंपनी में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स को सोचना होता है. दे कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली. हम किसी भी प्रिंसिपल को ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते हैं. हमें देखना होता है सिचुएशन की क्या डिमांड है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें ये सब चीज़ें देखकर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करने होते हैं. अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं, जो कि एक प्रिंसिपल है, हमने डिस्कस भी किया है. अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं तो इस प्रिंसिपल का मोटिव है सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम सुपीरियर ओनली. कोई भी सबऑर्डिनेट केवल सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा, राइट. बट ये लोअर लेवल में तो ठीक है, जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं और वर्कर के ऊपर सुपरवाइज़र है, तो पता है जितने भी वर्कर्स हैं वो सब सुपरवाइजर्स की बात मानेंगे, सुपरवाइजर्स को फॉलो करेंगे. बट अगर हम हायर लेवल पर आ जाएं तो वहाँ पर तो ये फॉलो अप नहीं होगा ना. कंपनी में CEO हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है, और मैनेजर्स हैं, ठीक है. सो वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रॉपर हायरार्की फॉलो होती है. वहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल नहीं चलेगा, नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि सबऑर्डिनेट केवल एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा. और ये भी बिल्कुल ठीक बनाया गया है ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो. मान लो 2 बॉस हो जाते हैं किसी कंपनी में तो एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, काम में इतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाएंगे, ठीक है. तो मतलब एक ही बॉस होना चाहिए. बट लेकिन ये लोअर लेवल तक तो ठीक है. आप अगर हायर लेवल की बात करते हो तो वहाँ पर एक हायरार्की फॉलो होती है. वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि सबऑर्डिनेट केवल ऑर्डर रिसीव करेगा सुपीरियर से. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, CEOs होते हैं, ठीक है, वो अपना एक हायरार्की फॉलो करते हैं. ऑल राइट, सो दीज वर दी 7 points which we have studied today, that is nature of principles of management, right? Okay, so dear students, there is one more point which needs to be discussed. This is this is not the point, this is the another topic, that is derivation of principles of management. What are the derivations? The principle of managements are derived by 2 ways. एक तो ऑब्जर्वेशन से. ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बार बार बताया कि जितने भी मैनेजमेंट थिंकर्स हैं उन सब ने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, एनालाइज किया, तब जाके ये प्रिंसिपल सब सेटअप किए. और कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स. अब कुछ भी चीज़ हमने रियलाइज़ किया, ठीक है, लेकिन जब तक हम एक्सपेरिमेंट खुद करके नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा वो चीज़ सक्सेसफुल है या नहीं है, राइट. सो लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इस मेथड में मैनेजर ऑब्जर्व करते हैं सर्टेन इवेंट्स बार बार रिपीट कर करके और एनालाइज करते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए. जैसे डिवीजन ऑफ लेबर. It was observed that efficiency can be increased by dividing work into certain well-defined jobs. भाई लेबर में हमने डिवीजन कर दिया कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे. जो स्पेशलाइज्ड है जिस काम में हमने उसको काम अलॉट किया. सो दिस लीड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. वी गेट टू नो कि इंस्टेड किसी को भी कुछ भी काम देने से अच्छा है कि उन लोगों को टास्क दिया जाए जो कि उसमें उस पर्टिकुलर टास्क में स्पेशलाइज्ड हैं. तब ये प्रिंसिपल फॉर्म हुआ, दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर. सिर्फ उन्हें वो टास्क देना जो उस पर्टिकुलर टास्क में स्पेशलाइज्ड हैं. लाइक मैंने आपको टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें एक प्रॉपर लाइन असेंबली चेन होती है, ठीक है, जिस पे टीवी बनता है. तो उसमें फ्रंट कवर जो उसमें स्पेशलाइज्ड है उसको दिया जाता है, वायरिंग लगाने के लिए जो उसमें स्पेशलाइज्ड है उसको दिया जाता है, स्विचेस जो उसमें स्पेशलाइज्ड है उनको दिया जाता है, पैकिंग में जो स्पेशलाइज्ड है उसको उसका वर्क दिया जाता है. तो ये करके देखा गया, इंस्टेड कि किसी को भी कुछ भी दे दिया जाए, तो ये प्रिंसिपल जनरेट हुआ, दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर, राइट. फिर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स.
Researchers may conduct experiments to derive principles and to test their validity. Right? For example, कैसे रिसर्च किया, 2 ग्रुप लिए मान लो, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप बेटा, ठीक है. अगर हम इसमें बात करते हैं तो वी कैन टेक 2 ग्रुप्स, वन अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ 1 बॉस एंड द सेकेंड वन अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ 2 और 3 बॉस. यहाँ पर 2 या 3 बॉसेज हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 बॉस है, ठीक है, जिनके अंडर में इस ग्रुप को काम करना है. यहाँ पर 2-3 बॉस हैं जिनके अंडर में सेकेंड ग्रुप को काम करना है, ठीक है. So over a specified period, it may be analyzed. The managers came to a conclusion that this is how the principle of unity of command was derived by the management thinkers. Unity of command में क्या होता है? Subordinate should receive order from one superior only. यहाँ बताया था ना मैंने आपको, एग्जाम्पल दिया था इसी प्रिंसिपल का कि एक सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली. तो काम में परफेक्शन आता है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, काम अच्छे से होते हैं सारे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बॉस है, एक बॉस से ऑर्डर लेना है. पर जहाँ पर 2-3 बॉसेस हो जाते हैं वहाँ पर एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ ही घबरा जाती हैं. अगर इनकी नहीं सुनेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, इनकी नहीं सुनेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस. ये एक्सपेरिमेंट किया गया कंडक्ट, देन दे गेट टू रियलाइज़ कि ये प्रिंसिपल जनरेट किया जाए, दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि हर जगह फॉलो अप होना चाहिए. देयर शुड बी one boss only, a subordinate should receive order from one superior only. Right? Okay, so that's all for today. Prepare your notes accordingly. Thank you so much.